Hello everyone, welcome to iExam Students. My name is Kailash Tiwari, XA for Union Bank of India. So students, in this video, we will discuss about the NABARD finance stream strategy. Actually, you all know that in this year NABARD notification, NABARD finance has the 30 vacancies, so which is generally a very good count for the finance related students. So in this video, we are going to discuss how you have to cover the ARD, ESI, GA, or if you will say the cumulatively how you have to clear your phase 1 paper, because if you will see the cutoff of previous year, it was very low as compared to the general stream or other stream. So basically what you need is a very targeted approach for the all these three subjects. So we'll discuss, and this will be according to the 40 days which are left for your prelims examination or the phase 1 examination, which is scheduled on 7th of September. So this is the number of vacancies and reservation. If you will see the finance stream, for the general stream there are 80 vacancies, and for the finance stream there is 30 vacancies. Okay, so there is a good opportunity for the students who are eligible for this particular post. So you must prepare if you are from the finance stream. So basically for your any doubt and query और कुछ भी चीज उससे रिलेटेड, अगर आपका कुछ भी है फाइनेंस से रिलेटेड, सो प्राची मैम जो कि फाइनेंस स्पेशलिस्ट है, मैम एक फ्री ई सेमिनार करने वाले हैं 30 जुलाई को, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड इसके अलावा दिस इज आवर लाइव क्लास शेड्यूल फॉर द फेज 2 प्रिपरेशन, और यू कैन से द फाइनेंस स्पेसिफिक टॉपिक. एक्चुअली जो स्पेसिफिक स्ट्रीम है वो फेज 2 में ही पूछी जाती है, फेज 1 में नहीं पूछी जाती है. सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. सो ये 1 अगस्त से ये प्लान अभी आगे का, और आप इसमें देख सकते हैं जो हमारी फाइनेंस की एक्सपर्ट फैकल्टी है, प्राची मैम, शिखा मल्होत्रा मैम, नेहा अरोड़ा मैम, ये इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. But before that, because that is for the phase 2, first we have to clear the phase 1, and मैं उसके लिए बहुत श्योर हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स थोड़ा सा भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो वो डेफिनेटली फेज 2 के लिए सेलेक्ट होंगे, क्योंकि जो एक तो स्पेसिफिक स्ट्रीम है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होते हैं और उसके साथ साथ कट ऑफ भी कम होती है. अभी मैं आपको शो करूंगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, व्हाट यू कैन डू इज, आप ये हमने एक टॉपिक वाइज स्टडी प्लान दिया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड यूज दिस स्टडी प्लान एज अ चेकलिस्ट. आप इसको एज अ चेकलिस्ट की तरह यूज कीजिए, और जो ARD, ESI, GA, बिकॉज दिस इज अ क्वालिफाइंग पार्ट और सॉरी दिस इज द मेरिट पार्ट फॉर द फेज 2. तो इसमें कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं, जो इजी हैं, जो आपको इजीली समझ आ सकते हैं, वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. एंड बिकॉज यू आर फ्रॉम द फाइनेंस, तो ऐसा नहीं है कि ESI आपको समझ नहीं आएगी, दिस इज वेरी इजी फॉर यू. सो वो तो आपके पास एक एडिटिव एडवांटेज है. इसके अलावा वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द कोर्स फॉर द NABARD ग्रेड ए फाइनेंस, तो आप अगर एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. सो विल डिस्कस विद द एग्जाम पैटर्न. सो ऑल ऑफ यू now well aware with the pattern of the examination. So if you will see the preliminary examination structure, these above parts are for the qualifying part, and the general awareness, ESI and agriculture, this is the merit part, and this is of 100 marks. So you have to get, last year if you will see the cutoff was around 18 marks, so you have to get near about 18 marks out of 100 as per the previous year examination pattern. So it is not actually that much difficult, because you are students from the commerce background. So generally ESI में अगर हम स्टैटिक पार्ट बोलेंगे तो उसमें आपको कोई भी इशू नहीं होगा. लाइक अगर साइंस स्टूडेंट के सामने हम इन्फ्लेशन या हाइपरइन्फ्लेशन की बात भी करते हैं तो उनको कंफ्यूजन होता है, आपको कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं होगा. Although आपके लिए ARD थोड़ा सा नया हो सकता है, but I will tell you which topic you have to cover so that you can easily get this much of marks to clear your cutoff. This is the scheme for the mains examination or the phase 2. So there are 2 papers. First paper is for the general English, and there will you get 3 questions. One for the essay writing, then is the pressy writing and letter writing. Okay, and you will get the 90 minutes for that paper. Then is the paper 2. This is the stream specific paper. So the syllabus as given by the NABARD, the paper will be there. So there will be 30 objective question and 6 descriptive question, out of which you have to attempt the 4 descriptive questions. 2 questions will be of 15 marks, so 30 marks, and 2 questions will be of 10 marks, so 20. So this is total 50 marks. So 50 marks objective, 50 marks descriptive paper will be there for your mains examination. Now coming to the cutoff part, because you have to understand the level of examination,
सी दिस यू नॉट हैव टू टारगेट, बेसिकली आपको टारगेट नहीं करना है कि आपने इतना ही मार्क्स लेकर आने हैं, बट जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें बाकी स्ट्रीम के कंपैरिजन में फाइनेंस की कट ऑफ कितनी गई थी। सो फाइनेंस की अगर आप कट ऑफ देखेंगे, एंड दिस इज फॉर द मेरिट पार्ट ARD ESI एंड GA का, तो उसका टोटल था फॉर जनरल 16.75 मार्क्स, जहां पे जनरल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की 53.50 गई थी। सो यू कैन सी द डिफरेंस कि आपको 16.75 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स एज पर द प्रीवियस ईयर पेपर। उसको एक बार आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपके 16 से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। 100 में से 16.75 मार्क्स आपको लेकर आने हैं, एंड इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस हाउ यू विल गेट दिस मच ऑफ मार्क्स, ओके। एंड अब आप मेरिट सेक्शन देखेंगे, क्योंकि कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी है, सो यू हैव टू क्लियर द रीजनिंग सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन, कंप्यूटर अवेयरनेस, क्वांट्स, एंड देन डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्टडिंग द मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो इसमें भी वो जो मैनेजमेंट वाली चीजें हैं वो आपको एक एडिटिव एडवांटेज देंगी। सो सेक्शनल कट ऑफ की बात करेंगे अगर GA ESI एंड ARD में, सो ARD में 6.5 थी एंड ESI में 4.50 एंड यहाँ पे 3 मार्क्स, तो 14 मार्क्स तो सेक्शनल कट ऑफ की वजह से ही हो गए थे। उसके एडिशनल आप देखेंगे तो 4.5 मार्क्स आपको लेके आने थे। सो दिस वाज द लेवल ऑफ कट ऑफ। अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर करते हैं, इसके अकॉर्डिंग कहने का मतलब है कि आप ये मान के चलिए कि आपको बेसिक पढ़ना है, जितना आपको समझ आता है, आपको बहुत ज्यादा उसमें प्रेशराइज नहीं होना है, एंड यू हैव टू फोकस फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। एंड मैं आपको बताऊंगा कि इतने मार्क्स आप इजीली कैसे लेकर आ सकते हैं। एक्चुअली हम लोग रोज रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं फॉर द कंटेंट के लिए भी, आप उन कंटेंट वाली वीडियोस को भी देख सकते हैं। एंड वहां पे मैंने शो किया है कि फेज 1 में लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चंस आए थे जिनको आप इजीली कर सकते हैं, या वो कितने बेसिक नेचर के थे, ओके। सो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ देखते हैं मेंस की। तो मेंस में तो खैर मोर और लेस वो सिमिलर ही थी। जनरल के लिए 118.42 थी और फाइनेंस के लिए 113.33 थी। इसमें बाइफर्केशन देख लेते हैं, क्योंकि जो इसमें फर्स्ट पेपर था वो इंग्लिश का और सेकंड पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो फाइनेंस की अगर हम बात करेंगे तो जनरल और EWS के लिए 50.25 ये इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स थे की कट ऑफ है, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए 17.5, डिस्क्रिप्टिव के लिए 7.5। सो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। एंड ट्रस्ट में कि आपको फेज 1 के बाद मतलब सफिशिएंट टाइम मिलता है कि आप अपना फाइनेंस को रिवाइज कर सके। ऑल्दो आपने पहले पढ़ा होना चाहिए, आप उसको रिवाइज कर सके और वो टू द पॉइंट पढ़िएगा जो सिलेबस में दिया है। होता क्या है, कोई एक पर्टिकुलर बुक ले लिया आपने तो उससे फिर कवर नहीं होता, क्योंकि आपको देखना है कि जितना सिलेबस दिया है वो आपका सारा कवर हो। तो यहाँ पे 50.25 इंग्लिश के लिए थी, 17 एंड 17, ओके। सो इसके बेसिस पे कट ऑफ बनी थी। तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि ये तो आपका अपना सब्जेक्ट है। एंड दूसरा इंग्लिश में लेटर राइटिंग वो आप इजीली याद कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है। दूसरा ऐसे राइटिंग एंड प्रेसी राइटिंग वो भी हो जाता है। एंड उसके लिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए हमारे पास फैकल्टी है, डॉक्टर संजीव शर्मा सर हैं, वो स्पेसिफिक फैकल्टी है, उनका PhD है इंग्लिश में, उन्होंने XGM सर्व किया हुआ है RBI में। सो वो यहाँ पे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव को देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंस का सिलेबस है, पूरा सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको जस्ट फॉर दिखाने के लिए यहाँ पे लिया है। इसके अलावा ये हमने अभी डिस्कस किया कि इन बिटवीन आपको सेमिनार में अटेंड करना है तो आप अटेंड कर सकते हैं। प्राची मैम विल गाइड यू हाउ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज अभी भी सफिशिएंट टाइम है, बस आपको एक फोकस्ड होके स्टार्ट करना है। नाउ विल डिस्कस द ARD एंड ESI. So few days back we have provided this topic wise study plan for the all subjects, not only for the ARD ESI GA but for all subjects that are 8 subjects. तो 8 subjects के लिए हमने दिया था। अगर आप उसमें देखेंगे ARD को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ARD ESI को, क्योंकि कई सारे फाइनेंस वाले स्टूडेंट से बात होती है, तो उनकी मेन इशू यही है कि सर एग्रीकल्चर तो पढ़ा नहीं, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि केवल क्वालिफाई करना है, कोई PhD तो इसमें करनी नहीं है, और ना ये मेंस में आने वाला है, ना मेरिट वाला सब्जेक्ट है मेंस के लिए। तो यहाँ पे बस जस्ट इसको क्लियर करना है। तो अगर आप देखेंगे ये हमने मेन टॉपिक्स डिसाइड किए थे कि जो एग्रीकल्चर में आपको कवर करने होते हैं। अब आप इसमें देखिए जो पहला टॉपिक है स्टडी ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये मैंने वीडियो भी डाली, आप एक बार जस्ट उस वीडियो को देख सकते हैं, सो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस ऑल्सो। एग्री भी यूट्यूब चैनल पे हम रेगुलरली सेशंस करते हैं, एग्री भी यूट्यूब चैनल, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो एग्रीकल्चर की ब्रांचेस जैसे एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल साइंस के लिए ओलेरिकल्चर है, फ्लावर के लिए फ्लोरिकल्चर है, फ्रूट्स के लिए पोमोलॉजी है। इस टाइप से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप की खरीफ सीजन, देन रबी सीजन, देन जायद सीजन, उसकी क्रॉप कौन सी है, बेसिक सी चीजें हैं। देन क्रॉपिंग सिस्टम से, देन क्रॉप प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन है, एग्रोमेट्रोलॉजी, अगेन अब एग्रोमेट्रोलॉजी है जो मौसम
विभाग की हम बात करते हैं तो उसमें बेसिक से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है। देन सॉइल क्लासिफिकेशन की, इंडिया की जो सॉइल है, जो हमने सोशल साइंस में भी पढ़ा होता है 8th 9th क्लास में, कलर बेसिस पे क्लासिफिकेशन, वो सारा कुछ इसमें पूछा आता है। देन इज द वाटरशेड क्लासिफिकेशन। वाटरशेड क्या है, एक बार आप इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। देन सॉइल इरोजन। अभी सॉइल इरोजन ऐसा कोई नया टॉपिक नहीं है कि वो मतलब बहुत उसमें रॉकेट साइंस है। ये 8th 9th 10th में भी जो हमने सॉइल साइंस पढ़ा होता है, अगर आपने हिंदी में पढ़ी तो मृदा अपरदन, तो ये यही टॉपिक पढ़ना है, बहुत इजी होता है, बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देन इरिगेशन टाइप मेथड्स, ये एक बार आप जस्ट देखेंगे, जो हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए उसमें हमने काफी पिक्चर फॉर्म में शो किया है, सो दैट कि आपको वो समझ आए। तो इस टाइप से आप इसको कवर कर सकते हैं। और कोई भी टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है कि जो डिफिकल्ट है, जिसमें बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स ज्यादा है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। और इसके साथ ही बताऊं कि आपको इसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे या 20 क्वेश्चन मिलेंगे। रेस्ट ऑफ द 20 क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम द डायनामिक सेक्शन। सो सेम टाइम आप इसको ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कंसेप्ट पढ़ने में ज्यादा टाइम जा रहा है तो कुछ टॉपिक्स कवर कीजिए। उसके अलावा जैसे एग्री सेंसस है, लाइव स्टॉक सेंसस है, ISFR रिपोर्ट है, स्टेट रैंक प्रोडक्शन में, एग्री प्रोडक्शन, ये हमने आपको पिक्चर फॉर्म में भी दिया है, इन्फोग्राफिक फॉर्म में, एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स, यूनियन बजट, ES इकोनॉमिक सर्वे और लेटेस्ट एग्रीकल्चर न्यूज, ये भी आप कवर करते हैं तो अराउंड 20 मार्क्स आपके इजीली यहाँ पे भी कवर होते हैं ना। आपने कट ऑफ देखी लास्ट ईयर 20 मार्क्स से कट ऑफ वो कम थी। ओके, तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। सिमिलरली अगर ESI में देखेंगे, सो ESI बिकॉज यू आर फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड, सो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा आपको ये चीजें समझना। लाइक कि अगर अभी हम नॉर्मल स्टूडेंट से बात करते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि हम GVA वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, GDP क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर दोनों में क्या डिफरेंस है ना, जब हम सेक्टर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप सभी को है। सो यू हैव एन एडिटिव एडवांटेज फॉर द ESI टॉपिक। तो मुझे नहीं लगता कि इन टॉपिक में कोई भी आपके लिए डिफिकल्ट होगा। उसके कंसेप्ट को समझना, आपको जस्ट गो थ्रू उसको करना है। लाइक नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, आप इन जितने भी टॉपिक्स हैं इनको आप जब पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आएंगे। क्योंकि होता क्या है, जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए है, जो पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पे जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं या जो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म है या फिर फाइनेंस के टर्म्स हैं, वो कंफ्यूज करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। तो वो डिफिकल्टी आपके लिए नहीं है। इन्फ्लेशन ट्रेंड एंड इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉपुलेशन ट्रेंड, एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, नॉन इंस्टीट्यूशन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो ये सारी चीजें अगर आप एक बार रीड करते हैं तो आप यहाँ पे भी इजीली मार्क्स अच्छे लेकर आ सकते हैं। सिमिलरली दीज आर द मेंशन्ड स्कीम्स, आप इनको 1 by 1 पढ़िए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यू कैन यूज दिस PDF एज अ चेकलिस्ट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देन फॉर द जनरल अवेयरनेस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डेली स्टडी द BPedia। तो उससे क्या होता है कि आपको वो सारा क्रिस्प एक जगह पे मिलता है एंड आपको डिफरेंट न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी फैकल्टी है वो पूरा कलेक्ट कर रही है डिफरेंट न्यूज़पेपर से और आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इसको जस्ट पढ़ सकते हैं एंड ये आपको फ्री डाउनलोड भी हो जाएगी हमारी वेबसाइट पे। आप IXMB की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे BPedia आपको मिल जाएगी, आप फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा PIB करंट अफेयर्स, EBF इकोनॉमिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक स्कीम, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कवर एंड दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू गेट 18 मार्क्स और 20 मार्क्स और व्हाट वी कैन से 1/5 मार्क्स ऑफ द टोटल एग्जामिनेशन मार्क्स। सो इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू कंसंट्रेट। जो भी पढ़िए उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ टॉपिक लेके पढ़िए और कोई भी डाउट होता है तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले इस स्टडी प्लान को आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राची मैम का जो सेमिनार है आप उसको अटेंड कर सकते हैं डेली के लिए, आगे स्ट्रेटेजी के लिए। और इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली प्रिपेयर करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले दीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं दिया तो आप एक बार इस पेपर को दीजिए, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये फेज 1 के लिए है। आप खुद देखेंगे कि 18 मार्क्स लाना इतना डिफिकल्ट नहीं था प्रीवियस एग्जामिनेशन में। तो फिर सोचना क्या है, आप अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, मन में कोई भी शंका है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और आप हमारे एग्रीबी यूट्यूब चैनल, एग्रीबी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पे हम डेली सीरीज हम लेकर आ रहे हैं फॉर नाबार्ड phase 1 preparation. Okay, so this is all for today. Thank you everyone for watching this video and have a good day ahead.